प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुकमा मुठभेड़ में 11 महिला नक्सलियों सहित अब तक 17 नक्सलियों के शव बरामद। म्यांमार में फिर भूकंप के झटके, 5.1 मापी गई तीव्रता। पीएम मोदी ने म्यांमार के जनरल से की बात, हादसे पर जताई संवेदना। जयपुर में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति तोड़ने पर बवाल, भारी पुलिस बल तैनात। ग्रेटर नोएडा में दिल्ली से जोत लेकर आ रहे श्रद्धालुओं को बस ने मारी टक्कर, 2 की मौत 2 घायल। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां पूर्व सीएम और सांसद जगदीश शेट्टर ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे काम कर रही है जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मर चुकी है, पर अब केवल पोस्टमार्टम होना बाकी है। ಅಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬರೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದರ ಏರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಮತ್ತು ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರು, ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ನಾಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡಿಸ್ತೀರಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಲಿಂದ ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಾಕೋ ಬದಲಿ ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು 4 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇರಿಸಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ರೈತರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರೇ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಇದ್ದಾಗ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹಾಗೆ ನೀವು 4 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಡ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬರ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ರೈತರ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈತರು ಒಳ್ಳೆಯ ವರಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಲು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಬರೆಸಲ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಕತ್ತೀರ, ದರ ಇದರದ್ದು ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಭರಣ ಮಾಡಿರಿ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಈಗ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ನಡೀತದೆ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವರಿಷ್ಠರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೇನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ವರಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಆಸೆ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು, ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್, ಈ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆಗಲಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಆಗಲಿ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೇನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವರಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು. ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿಚಾರ? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡು ಈಗ ಭಾಳ ಒಂದು ಜಾಣತನದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜಾಣತನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾಕೆ ಕೈಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಣ್ಣಾ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಕೂಡ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮುರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು, ಈ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಾ ಡಿ ಎಮ್ ಕೂಡ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಡೌನ್ ಅಂತಿದೆ, ಪೂರ್ತಿ ನೆಲಸಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾವ ಅಷ್ಟೇ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸದ್ದು. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಈಗ ಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಇದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. ನಾನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲದ ಎಂ ಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಾಗ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಣ್ಮೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ JM ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರನ್ನ ಶತಾಯುತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೀತಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹರೀಶ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಚರ್ಚೆ ಇದಾಗಲೇ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೋಸ್ಟಿನ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠರ ನಿರ್ಧಾರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವರಿಷ್ಠರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬರ PW ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದು ಸಹಜ. ನಾನು ಹಿಂದೆ RDPR ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವತ್ತು UPA ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, UPA ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ UPA ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ RDPR ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇದು ಸಹಜವಾದಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಹಜ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಜೊತೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ. ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರು ನಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಫೋಟೋನ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ. ಅವ್ರು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದೇವೇಗೌಡರು. ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾಗಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓವರಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಜೋರು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ವಾರ್, ತಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಶಾಸಕರು, ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಚಿವರ ಮುಖಾಂತರ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದುವರಿಬೇಕೋ ಬೇಡ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕೋ ಬೇಡ, ಇದು ನಡೆಯೋದು. ಅಥವಾ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಬೇಡ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇನು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ವಾರ್ ನಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಮಾತುಕತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಒಂದು CM ಹಿಂದಿಂತು ರಾಜನಿಗೆ ಸದ್ಯ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ವಾರ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥನೇ ಅದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. DK ಶಿವಕುಮಾರು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿಂಬಾಲಕರಾದ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುವಂಥ ಏನು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು 5 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಏನು ಇನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನದ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನಿ ಟೈಮ್.
ಸರ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಸದನದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮಗ ಹೋಗಿ ಕೊಲೆ ಸಂಚು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳಗಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತಿದೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗುರ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದರೆ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ, ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ರಾಜಣ್ಣನ ಮಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರು, ಈಗ ನಂಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡೇ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜಣ್ಣವರು ಅವು ಓಪನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಏನು ನನಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು 4-5 ದಿವಸ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮೂ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ಯಾವ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ನಾವು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದು? ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪು, ಅಥವಾ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಸರುಗಳು, ಅದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 100% ಈ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಿಚಾರದಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಆಯ್ತದು. ಅಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳೋರು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸತಿ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪದ್ದು ಏನದ ಇನ್ರೋಡ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಯಾವುದೂ ಕೇಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪದ್ದು ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ, ಯಾವ ಹೊರಗೆ ಬಂದವನು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು ಹೆಸರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ದಂಡ ಜೈಲುವಾಸ ಆತನೋ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಓವರಾಲ್ ಇದು ಡಿ ಕೆ ವೀಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಅವರು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಇಬ್ಬರಿಗೇನು ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೋ, ಯಾರು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಡಿ ಕೆ ಅವರು ವೀಕ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೇನಾಗೋದೈತಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವೀಕ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಏನಾಗೋದೈತಿ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಜ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಆಡಳಿತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಡೆಡ್ ಅಂತಂತಾರೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಡೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದೀಗ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां के नकुड़ ब्लॉक के गांव सिरसला में रहने वाली रूमा नाम की महिला की जिंदगी तालाब की सफाई न होने के कारण बदहाल हो गई है। तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर उसके घर तक पहुंच गया है, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और जहां पर योगी सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो वहीं पर हम एक आपको तस्वीर दिखाएंगे जो कि नकुड़ विधानसभा के खेड़ा अफगान के अंदर सिरसली गांव के अंदर की है। इस सिरसली गांव के अंदर आपको बता दें, इन्होंने काफ़ी दिन पहले भी कई एप्लीकेशन डाली है, जिसमें इनका मकान हम आपको दिखाएंगे और मकान के साथ किस तरह बताएंगे जो तालाब इनके मकान तक घुस चुका है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीधी बताएंगे, ये इनकी एक रास्ता है और रास्ते के साथ साथ इन्होंने टीन घेर कर यहाँ पर ये रह रहे हैं, इनके बच्चे हैं। और ये इनका आशियाना है, जिसको गरीब का आशियाना कहते हैं, ये आशियाना है। और इसी आशियाने के अंदर जब हम चलेंगे तो ये इनका मकान है, जो कि कड़ियाँ आप देख सकते हैं। ये पूरा इनका मकान है और इसी मकान में ये अपना जो है सभी बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ रहती हैं। लेकिन इसी के साथ जब आगे और चलेंगे हम,
तो ये कुछ इनकी ज़मीन है जो यहाँ पर ये अपना खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के साथ साथ आपको साफ जो तस्वीरें दिखाएंगे हम, खाना बनाने के साथ साथ जो है आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें किस प्रकार की है। पूरे जो सीरियसली और पूरे गांव का जो गंदा पानी है ये आप देख सकते हैं, पूरा तालाब का जो गंदा पानी है वो यहाँ पर गंद जो है भरा पड़ा हुआ है। देखिएगा इसमें जो दारू के पैकेट जो होते हैं उसके साथ में पॉलीथीन और इतने मच्छर, और मच्छरों के साथ साथ जितनी भी मतलब यहाँ पर देखा जाए तो पूरी गंदगी यहाँ पर मची हुई है। और गंदगी के साथ साथ यहीं पर इनको खाना बनाना पड़ता है, और खाना बनाने के साथ साथ इसी पूरी गंद में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर जो ये खरपतवार जिसको बोलते हैं वो खड़ा हुआ है। और खड़े होने के साथ साथ ये इनके लैट्रिन बाथरूम है, और इनके साथ साथ सारी समस्या आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर रह रहे हैं। पूरी इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रूम जी। तो ये कितने दिनों से गंदगी पड़ी हुई है, क्या इसको साफ सफाई नहीं हुई कोई? अब तक नहीं हुई जी। कितने दिन हो गए? करीब 10 साल। 10 साल से कोई ऐसा नहीं हुआ? नहीं जी। तो आपने किसी को कंप्लेंट नहीं करी, कोई प्रधान को या आपके सचिव साहब है उनको कोई ऐसा कोई शिकायत नहीं करी? प्रधान के पास भी गए जी, नुका लगे किसी साफ करवाओगे, वैसे ही अब तक तो कुछ हुआ नहीं। 10 सालों से नहीं हुआ जी। तो अभी जो ये गंद है ये पूरे मतलब पूरे कस्बे का तो गंद यहाँ पे है? पूरे गाँव का आ रहा, बाहर का भी और भी। तो उसमें मच्छर भी हो रहे हैं, बड़े बड़े जो बीमारियाँ? हाँ जी, सांप भी आवा है और भी जिनावर आ जा। तो आपने अच्छा अपना आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास नहीं आपने किया कि प्रधानमंत्री आवास बनना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं, कहीं दिया नहीं क्या? दिया था जी 1-2 बार, क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ, कट गया या बना ही नहीं आपका? बजे हुआ ही नहीं जी कुछ। अच्छा, क्या करते हैं? आपके पास जमीन है खेती की, क्या है? मजदूरी करा जी। खेती की जमीन नहीं है? ना जी, कुछ नहीं है। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? 3 है मेरे पास। 3 बच्चे हैं। जी। तो उज्ज्वला योजना मिली है आपको? नहीं जी। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं मिला आपको ना कभी? जी, कुछ नहीं मिला। लैट्रिन बाथरूम में क्या शौचालय, स्वच्छ भारत? कुछ नहीं है। स्वच्छ भारत भी नहीं मिला आपको? नहीं। सपना जो स्वच्छ भारत के अभियान के तहत जो टॉयलेट बनाए गए थे वो नहीं ना मिले? जी, कुछ नहीं मिला। यहाँ से ऐसे ही पड़े हम तो, जैसे आप देख रहे। आपको सरकारी योजना कोई लाभ नहीं मिला? ना कुछ राशन नहीं। कार्ड है? राशन कार्ड राशन कार्ड है बस। तो गुलाबी कैसा है वो राशन ऐसे ही कार्ड? है, सफेद कार्ड। सफेद कार्ड। जी। तो आपने कहीं कहा नहीं कि मेरे को शौचालय बनवाए? में जाली कहीं पेरी प्रधान के पास, उन्होंने कहा जी करवा देंगे, अब तक तो सुनाई हुई नहीं कहीं भी। कई बार वैसे भी गए जो जानकारी आदमी है, अब करा देंगे जी हम थारा काम। प्रधान जी के पास गए, प्रधान जी बस क्या पढ़ना छुटवा ला, कहाँ जी करवा देंगे। आज तक तो यहाँ कोई आया नहीं। तो यहाँ पर आप किसी और को नहीं मिले, जैसा बिलोक में जो BDO साहब हैं उनसे कोई ऐसी कुछ किया होगा? अजी सब मांग कर है पैसों की। अब भाई पैसे मुँह देख मकाम हो रहा है यहाँ, तुम जा अच्छा, पैसे लेंगे तो काम करेंगे? काम करेंगे, नहीं वैसा नहीं करते किसी का। तो पैसे भरो और काम करवा लो। अच्छा, यानी आपका टॉयलेट कुछ नहीं बना है? कुछ नहीं हुआ जी, जैसे आप देख रहे सही है। तो पहले यहीं पर रहते थे या कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ तो जी मुझे 14 साल हो गए। इससे पहले कहाँ रहते थे? शादी को मेरे 14 साल हुए। अच्छा, 14 साल ही शादी को? जी। तो जब से यहीं पर रह रहे हो? जी तो यही आपकी जमीन कैसी है, पुश्तैनी है, कैसी है ये जी। जमीन? कैसी है ये, पुश्तैनी है, कैसी है आपके रहने की यहाँ? बस जी ऐसी है। अच्छा, आप यहीं पर रह रहे हैं? जी। तो चलिए, तो दिखा रहे हैं इसकी जो एक तरह से ये टीन के रखी है इन्होंने, टीन के साथ साथ कच्ची पीछे छत है, छत के साथ साथ यहाँ पर ये छोटा सा मकान है, 3 इनके बच्चे हैं। और पति का नाम क्या आपके? अंकिता जी। अंकित इनके पति का नाम है। सिरसली गांव पड़ता है, खेड़े अफगान का, और नकुड़ विधानसभा का ये गांव है। और आखिरकार यहाँ तक वो योजनाएं क्यों नहीं पहुँच पाई, ये भी एक सोचने का विषय है, हालांकि जांच का विषय कि यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाई वो योजनाएं जो स्वच्छ भारत का अभियान के तहत नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि शौचालय हर घर बनेगा, वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उज्ज्वला योजना इनके तक नहीं पहुँच पाई है। और आखिरकार आयुष्मान कार्ड बन गया आपका? जी वे तो बढ़ने। आयुष्मान कार्ड बन गया? जी। चलिए, आयुष्मान कार्ड तक यहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन ये जो योजनाएं हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। इनका आवास नहीं मिल पाया है, और ये तालाब की गंदी इनके घरों में घुस चुकी है। तो बने रहेगा ऐसी खबरों के साथ। नमस्कार। और दिल्ली में उच्च न्यायालय द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। न्यायालय ने कहा कि ग्राहकों से देश भर के किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में जबरन शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। एक मिनट ठीक है। यस सर। ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು CCPA ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮದಿದೆ 2019ರ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ NRAI ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರು ಇದನ್ನು ದಿಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು CCPAಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಗೈಡ್ಲೈನನ್ನು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ದಂಡವನ್ನು. और बिहार के भोजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में ऑटो चालक की दर्दनाक मौत हुई। हादसे में 4-5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कर्जा उमरावगंज में ये दुर्घटना हुई। भीषण सड़क एक हादसा हुआ है। टोपी यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ पर ग्रामीण जनता इनसे जाने का प्रयास करते हैं। भैया टेम्पो कैसे है? मतलब यहाँ से लोग आ रहे थे अनाज खरीदने के लिए, तो मैंने कैसे हुआ? मतलब टेम्पो में अच्छा ओवरटेक नहीं, ऑन प्लस करना और राजद की बड़ी नेता है और मदन यादव जी, बताइए बारे में क्या कुछ करना चाहते हैं? अनहोनी के कौन कर सकता है? अनहोनी था, वो बेचारा अपने बाल बच्चा छोड़ कर चला गया। अब ड्राइवर सुनने में आ रहा है तो ड्राइवर चालक कहाँ के थे? बिहिया के गाड़ी भी बिहिया के? सब बिहिया के लोग हैं। दुखित बात है, सब लोग बिहिया के। भगवान उसके आत्मा को शांति दे। कितने आदमी के स्पॉट डेथ में मौत हुए हैं? अभी तो ये केहू ना रहल ड्राइवर खाली रहल है 5-6 जना, 6-7 आदमी होई। एक आदमी मरल, एक आदमी मरल, बहुत लोग घाही बा। के मरल बाटे? एक आदमी मरल है ड्राइवर यहाँ का स्थानीय ग्रामीण जनता ने बता रहे कि ड्राइवर चालक जो चला रहे थे टेम्पो, वो वहीं जो टेम्पो है जो कि ड्राइवर चला रहे थे, देख सकते हैं आप, उस चालक की मौत हुआ है। और राजद के वरिष्ठ नेता शोक संदेश भी दिया और सदन नमन भी किया, आप देख सकते हैं। खबर हुगली जिले के चांपदानी जिले से है, जहां कल रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार का नमाज अदा किया गया। बता दें कि चंदनपाड़ा में एक मस्जिद बनकर तैयार हो रहा है, जिससे सबसे बड़ा योगदान चेयरमैन सुरेश मिश्रा का है। धार्मिक स्थल हो या क्षेत्र का विकास, चेयरमैन सुरेश मिश्रा ने कभी भी धर्म के आधार पर विकास करना नहीं सोचा। मगर यहाँ का जो भाईचारगी है, बल्कि हम लोग बजरंग बली पूजा के टाइम में भी वहाँ पर पानी का इंतजाम करते हैं लोग, और इस बार भी उम्मीद करते हैं लोग भी हम लोग इंतजाम करें कि हम लोग का चपदानी के रिकॉर्ड में आए कि बहुत चेयरमैन का भी बहुत बड़ा योगदान इस बार। चेयरमैन साहब का तो कोई बात ही नहीं है, यानी जो भी मामला के लिए हम लोग चेयरमैन साहब के पास आते हैं लोग, यानी कभी हम लोग इनकार होकर हम लोग नहीं जाते हैं, लोग निराश होकर नहीं जाते हैं। लोग जो भी काम के लिए हम आए हैं, अभी तक भी तो हम निराश करके नहीं आए हैं, बल्कि एक नाला भी टूट गया था इससे 2 साल पहले, एक बिल दिए सब तुरंत, यानी हम लोग का पैसा आ गया। वो इमारत बिल्डिंग का कोई हम लोग का भावना है, जगह नहीं हम लोग के लिए। रही बात हम लोग के तो द्वारा सब लोगों को जो उनका मजार जो है, मस्जिद जो है, जब भी कभी भी कोई मंदिर का या मस्जिद का निर्माण हुआ है चापदानी में खास करके, तो हिंदू भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। और हिंदू के त्यौहार में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामनवमी। सामने रामनवमी है, आप खुद देखिएगा नज़ारा यहाँ पर चापदानी में कि बहुत सारे मस्जिदों में
मस्जिद के सामने जो लोग हमारे रामनवमी का जो प्रोसेशन निकलते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था, मिठाई का व्यवस्था मस्जिद की तरफ से किया जाता है। ठीक उसी तरह मुहर्रम के समय में जितने भी हमारे हिंदू संगठन है चापदानी में खास करके, जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर का संगठन होगा, पलता घाट में हम लोग का जो मंदिर वहाँ संगठन होगा, वहाँ भी हम लोग ठंडा पानी, मिठाई, शरबत वगैरह हम लोग पिलाते हैं लोगों को। साथ ही साथ चापदानी में जितने भी मस्जिद हैं तकरीबन हम वो ये बोल सकते हैं कि चाहे अंगस मस्जिद हो, चाहे अक्ल मिस्त्री मस्जिद हो, चाहे डलहौसी मस्जिद हो, चाहे हम लोग का भी एक नया मस्जिद बन रहा है चंदनपाड़ा में, बन रहा 10-13 नंबर वार्ड में ताजू शरिया मस्जिद। मैं समझता हूँ कि ये मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। मेरा क्या योगदान है उस मस्जिदों के लिए हमारी तरफ से, वो लोग हमसे अच्छा वो लोग बता पाएंगे। हम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम चाहते वो खुद वो लोग अपने बोले कि हम उन लोगों के लिए क्या किए हैं। तो सब मिलाकर चापदानी का जो माहौल है बिल्कुल सुंदर शांत माहौल है, और हम लोगों का हमेशा यही चेष्टा रहता है कि इस माहौल को हम लोग बना कर रखें। इस बारे में क्या है? देखिए, ये अंगस चंदनपाड़ा ये ऐसा इलाका है जहाँ हिंदू या मुस्लिम सब गंगा जमुनी तहजीब के तरह एक भाई के तरह रहते हैं। अभी तक यहाँ कोई किसी का कोई दंगा या फसाद नहीं हुआ। हर लोग आपस में मेल मोहब्बत से, हम उनके पर्व त्योहार में जहाँ तक हमारी माने धर्म इजाजत देती है हम शरीक होते हैं, और वो हमारे धर्म में हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं। और ये जो मस्जिद नई बनी है इसमें समझ लीजिए कि कितना बड़ा योगदान है हमारे सुरेश मिश्रा जी का, जो खुद हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। अगर उनके वजह से हमारी मस्जिद या ये जो अभी ये इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हैं ये सब उनके वजह से हुआ है, जितना जल्दी हो सका। तो मुहर्रम अली रजवी और मस्जिद ताजू शरिया के नायब सदर। अगली खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 16 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और 2 जवानों को मामूली चोटें आईं। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र से। यहाँ के सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गौशालाओं को लेकर दिए गए बयान से बजरंग दल और गौरक्षा में आक्रोश दिखा है। अखिलेश यादव का पुतला दहन कर रोष जताया गया। मेरा नाम करण चौधरी है, मैं महानगर गौरक्षा प्रमुख हूँ बजरंग दल से। और आज ये पुतला दहन किया गया था, खेरसो चौराहे पे किया गया था। और ये आज पुतला दहन किया गया है श्री अखिलेश यादव जी के बयान के विरुद्ध में किया गया था, जिन्होंने छोटी सोच और तुच्छी सोच का प्रणाम दिया था कि गाय के गोबर से बदबू आती है, गौशालाओं से बदबू आती है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि गाय हमारी माता है और उनके विरुद्ध में हम कोई भी गलत टिप्पणी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि गाय राष्ट्र माता को हम लेके चलते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा श्री अखिलेश यादव जी से कि देखिए, अगर आप हिंदुओं को अगर वोट की खातिर अगर हिंदुओं को बांटोगे तो ये तो होगा नहीं। अगर आप सभी को एक साथ लेके चलोगे, सबका साथ सबका विकास, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी राजनेता हैं अपनी वाणी पर संयम रख के जो भी बात बोले अच्छी तरह सोच समझ के जब बोले। तो सिर्फ पुतला दहन किया गया था या किसी तरीके का कोई ज्ञापन वगैरह? ये पुतला दहन किया गया था, कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है। किस बैनर तले हैं आप? है जी, किस बैनर तले हैं? बजरंग दल से। वहाँ पर पुतला खेरेश्वर चौराहे पर। किस पद पे है? मेरा जिला गौरक्षा प्रमुख है। जय श्री राम। मेरा नाम दीपक राजपूत है, बजरंग दल महानगर संयोजक। ये अखिलेश यादव जी का पुतला फूका गया क्योंकि उन्होंने हमारी गौ माता के लिए जो अपशब्द बोले हैं वो अपमानित जनक हैं, और इसको बजरंग दल सहन नहीं करेगा और इस विरुद्ध में पुतला फूका गया। किस जगह पर फूका? ये खेरेश्वर मंदिर चौराहे पर फूका गया। कितने लोग शामिल रहे? यहाँ हमारे काफ़ी बजरंग दल के कार्यकर्ता रहे, जिसमें अधिकारी भी रहे, विश्व हिंदू परिषद से भी रहे और बजरंग दल के महानगर गौरक्षा प्रमुख भी रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां तापिया परियोजना के अधिकारियों पर
तानाशाही का आरोप लगा है। गरीब छात्रों का भविष्य अंधकार में डालने का अधिकारियों पर संगीन आरोप लगा है। बेतहाशा फीस वसूलने से गरीब आदिवासी बच्चे शिक्षा से वंचित नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को लीज पर देकर किया जा रहा है पैसों का बंदरबाट। आदिवासियों से एग्रीमेंट के तहत भूमि के बदले किया गया था शिक्षा का वादा। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य बिल्ली मारकुंडी। आज इंटर कॉलेज को लेकर विवाद है कि डीएवी को संस्था को ये लिस्ट पर दे दिया गया है, जबकि ये सरकारी स्कूल हुआ करती थी। क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर या IAS PCS बन सकते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बहुत दुखद घटना है, अप्रिय घटना है गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसको हिंदी कल्चर देश कहा जाता है और हिंदी से ही कितने IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। ये कोई मामला नहीं कि इंग्लिश मीडियम से ही डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, ऐसा तो हमें संभव नहीं लगता। इंटर कॉलेज बहुत बड़ा क्षेत्र में बसा हुआ है, मतलब इसके कमरे कई हैं, जिसमें इसमें पेड़ पौधे थे, हरे भरे थे। डीएवी संस्था को हैंड ओवर होते ही वो हरे भरे पेड़ काटने का सिलसिला जारी हो गया। मैं आपको बता दूं, मैं उसमें स्वयं अध्यक्ष रह चुका हूँ। उसमें कबड्डी का ग्राउंड बढ़िया था, वॉलीबॉल का ग्राउंड था, क्रिकेट का ग्राउंड था छोटा सा, और शारीरिक व्यायाम का ग्राउंड बना था। प्रैक्टिकल रूम कई ठो थे, बढ़िया आम के पेड़ थे, जबकि इसमें आम के पेड़ अपने मन से कटवा दिया जा रहा है। यूकलिप्टस का पेड़ था, वो भी कटवा दिया गया है, जबकि किसी को कोई संज्ञान नहीं है। यह सीधे मनमानी किया जा रहा है डीएवी को, और डीएवी को जो हैंडओवर हुआ है इससे ओबरा क्षेत्र के, ओबरा इंटर कॉलेज के अगल बगल क्षेत्र के, जैसे गुड़ू गांव हुआ, चकाड़ी गांव हुआ, खरटिया हुआ, बिल्ली मारकुंडी हुआ, कोटा हुआ, कड़िया हुआ, चकाड़ी हुआ, और ये अरंगी हुआ, जुगैल हुआ, पनारी हुआ, कड़िया हुआ, टेढ़ी तेन हुआ, खाड़र हुआ, खैराही हुआ, परसोई हुआ, इधर गौरघट्टी हुआ, सेमिया हुआ, घोरिया हुआ, चतरवार हुआ, पटवद हुआ, रेणुकूट तक के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन इस समय इतना फीस बढ़ गया है, जबकि मेरा लड़का स्वयं उसी विद्यालय में पढ़ता है, 1000 रुपया फीस देता हूँ मैं स्वयं। और यह दुखद घटना थी, उसमें हम लोग पढ़ के आज उसी विद्यालय से पढ़ के ये इस स्थान तक पहुँचे हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि आंख में आंसू आ गई इस स्थिति को देखकर कि गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है कि प्राइवेट के हाथों में दे करके और सीधे SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के साथ, आदिवासी, वनवासी, गृहवासी, दलित शोषित के बच्चों के साथ, उनके शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ताकि ये पढ़े ना, लिखे ना और शिक्षा प्राप्त न कर सकें, और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों को साकार न कर सकें, और ये दबे कुचले रहें। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार महोदय, लोगों के माध्यम से यह गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, यूपी सरकार यह अपनी फैसला को वापस ले, और वापस लेने के बाद यथावत इंटर कॉलेज जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चलने दे, और उसकी सुंदरीकरण में भी ध्यान दें। एक बात और बता दें आपको कि हमारे बिल्ली मारकुंडी जो ग्राम सभा है, उसके अंतर्गत माननीय संजीव कुमार गोंड जी, जो राज्य मंत्री पूर्व विधायक ओबरा के हैं, उनकी जन्मभूमि है। उनके कानों तक, जू तक नहीं रेंग रहा है कि स्वयं वो भी उस विद्यालय से पढ़ाई करके निकले हैं, और उनको चूंकि अवगत कराने की कोई आवश्यकता नहीं कि अवगत कराया जाए, जबकि वो स्वयं यहीं के हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से, कि वह एक बार सदन में बात उठी थी, चूंकि हम लोग न्यूज देखे थे, वह गए थे, लेकर भी आए थे, चिट्ठी भी लेके आए थे। अब चिट्ठी लेके आके क्या किए, क्या करवाए, इसका कोई पता नहीं। इंटर कॉलेज को डीएवी हैंडओवर में किसकी भूमिका है? 3 लोगों का नाम सामने आता है। देखिए, इंटर कॉलेज में जो बनता, हर विद्यालय का एक समिति बनती है, जो भी विद्यालय सरकारी और प्राइवेट, हर विद्यालय की एक समिति बनती है। उसमें 2-3 पदेन होते हैं, और बाकी 2-3-4 विद्यालय के कर्मचारी, अध्यापक जो भी हों। तो इसमें सबसे पहले तो ओबरा CGM जो उस समय रहा करते थे, उनका अधिशासी अभियंता महोदय जो सचिव माने जाते हैं ओबरा इंटर कॉलेज के, प्रस्तावित जो परिषदी बनता है कमेटी उसके, और
अध्यापक। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र से रिटायर्ड प्रवक्ता हूँ और प्रवक्ता के पद पर मैं 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आज ओबरा तहसील में आप आए हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि सोनभद्र में नहीं पूरे प्रदेश में ओबरा इंटर कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान रखने वाला है, जो आज कुछ लोगों के प्रयास से वह डीएवी को हस्तांतरित हो गया है, जिससे आसपास के जो SC ST OBC और सामान्य वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं जिनका शिक्षा मौलिक अधिकार है उनसे वह वंचित हो रहे हैं। उनके अधिकारों के लड़ाई के लिए यहाँ हम लोग एकत्र हैं। तापी परियोजना जब निर्माण हो रहा था, जब भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था, उसमें तमाम बातें लीज होल्डरों के लिए लिखी गई थी कि गरीबों को शिक्षा दिया जाएगा, चिकित्सा दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? आज वो परिदृश्य में सही साबित हो रहा है? नहीं, जिस समय यह परियोजना स्थापित की गई और परियोजना के आसपास रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, यह परियोजना द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यह व्यवस्था जो है 2013 के बाद धीरे धीरे जो है इस व्यवस्था में कमी आती गई और ओबरा इंटर कॉलेज जो है यह डीएवी को हैंडओवर हो गया, जिससे जो पूर्व में जो है आश्वासन दिया गया उसकी आपूर्ति और पूर्ति नहीं हो पा रही। वह पहले के समय में इंटर कॉलेज जब था उसकी फीस कितनी थी, आज डीएवी की फीस कितनी है? क्या दोगुना लागत है कि तिगुना? ओबरा इंटर कॉलेज सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क पर जो है यह संचालित हो रहा था, जिसकी फीस नगण्य है। और यदि फीस कहा जाए तो वहाँ पर विशेष रूप से इंटर में पढ़ने वाले बच्चे जो 11-12 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें सामान्य और ओबीसी के वर्ग के बच्चों की फीस जो साइंस में थे वो 21 रुपये और जो आर्ट्स और कॉमर्स में थे वो 16 रुपये थी, और SC की फीस जो लगती थी साइंस वर्ग में वह मात्र 5 रुपये। इतनी कम फीस पर इतनी गुणवत्तापरक शिक्षा देने वाला शायद विद्यालय कोई प्रदेश का रहा होगा, लेकिन आज बच्चे जो है वो अपने गुणवत्तापरक शिक्षा से क्या अपने मौलिक अधिकार से दूर हो गए। कितनी फीस होगी डीएवी की लगभग? अब डीएवी की फीस तो इन्होंने जो 2023 में जब 1 अप्रैल 2023 को अधिग्रहण किया, इन्होंने कहा कि नहीं हम इसको जो है सरकारी फीस से संचालित करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन जब बच्चे वहाँ प्रवेश लेने गए तो वहाँ उन्होंने मनमाना फीस लिया, और मनमाना फीस के कारण जो गरीब बच्चे हैं उसमें एडमिशन ही नहीं ले पाए। और उसका कारण क्या है कि जिस समय हैंडओवर हुआ था यह डीएवी को विद्यालय, उस समय छात्रों की संख्या 1523 थी। आज की स्थिति है कि बच्चों की संख्या 100 से कम हो गई। अध्यापक वही है, कैंपस वही है, लेकिन व्यवस्था की वहाँ प्रधानाचार्य बदल दिए गए। जब वहाँ प्रशासन बदल दिया गया तो आज छात्रों की संख्या महज जो है 100 से नीचे हो गई, और यह बहुत विचारी प्रश्न हो गई। इंटर कॉलेज का कैंपस कितने वर्ग में फैला है, कितने कमरे हैं, इसको लीज पे कितने महीने के हिसाब से डीएवी को दिया गया है? इंटर कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि आप देखेंगे तो यह इतना बड़ा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ विद्यालय नहीं महाविद्यालय भी स्थापित हो सकता है। और उसका जो स्वर्णिम काल रहा उसमें 7000 बच्चे तक संख्या उसकी पहुँच गई थी, जिसमें 2 पालियों में परीक्षा होती थी, 2 पालियों में पढ़ाई होती थी और 3 पालियों में परीक्षा होती थी। और वह स्वर्णिम दिन जो है ये ओबरा इंटर कॉलेज के लिए जो है ये अभी एक स्वप्न हो गया है। जो यहाँ से कितने छात्र IAS रैंक के, PCS रैंक के या डॉक्टर बने हैं, इसकी कुछ जानकारी है? सन 1972 में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में मधु माथुर ने यूपी बोर्ड में जब टॉप किया तो यह ओबरा इंटर कॉलेज प्रदेश के शीर्ष। आपका परिचय? मेरा नाम संजय कुमार कनौजिया है। मैं ओबरा नगर पंचायत का सभासद हूँ, वार्ड नंबर 4। आज ओबरा इंटर कॉलेज डीएवी के हाथों सौंपे जाने को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? ये मामला कब से चल रहा है? सर, ये विगत कई वर्षों से मामला चल रहा है। ओबरा इंटर कॉलेज को सरकार द्वारा प्राइवेट हाथों में निजीकरण में दे दिया गया है, और जो निजीकरण में प्राइवेट स्कूल दिया गया है, इस स्कूल का जो संचालन कर रहे हैं, पहले तो बताया जा रहा था कि बच्चों की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, मगर वर्तमान में LKG UKG की फीस
1390 रुपये लगभग इस समय है बच्चों की। ये DAV के नाम रजिस्टर हो गया है कॉलेज? नहीं, रजिस्टर अभी नहीं हुआ है। और फिर भी उन्होंने ओबरा इंटर कॉलेज का नाम हटाकर अपना बोर्ड लगा दिया। कब ये बोर्ड लगा? बोर्ड आज ही पता चला कि आज ही रात में लगाया गया है। ये आंदोलन जो पहले हम लोगों द्वारा किए गए, सीएम साहब से हमने मिलने भी हम गए थे 2 बार, वो हमसे मिले भी नहीं और उनके आवास में भी हम लोग गए थे मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए। उन्होंने ज्ञापन लिया भी नहीं और हमसे मिले भी नहीं। मतलब बोर्ड पर नाम अंकित होने का मतलब ये होता है कि आपके प्रदर्शन में रंग ला दिए? बिल्कुल सर। और हमारी बात को सरकार से में कहना चाहते हैं कि अगर ये हमारी जो मांगे हैं, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, यहाँ आदिवासी, जनवासी, OBC, ST, SC और माइनॉरिटी और पिछड़े चाहे वो सामान्य वर्ग के बच्चे हों, गरीब बच्चों के, अगर ये वापस नहीं लिया जाता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे इस भारत क्षेत्र और पूरे ओबरा के सोनभद्र के बच्चों के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सोनभद्र क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इसका नाम कहीं नहीं आता है। जो भी नाम हुआ, जितने भी लड़के नाम थे, वो इंटर कॉलेज, पूर्व के इंटर कॉलेज के ही लड़कों ने नाम कमाया, जिले का नाम रोशन किया। आज DAV संस्था हो गई है, क्या आप मानते हैं कि इससे सोनभद्र की शिक्षा नीति चेंज होगी? हम नहीं मानते हैं सर। पहले जो शिक्षा थी, जो यहाँ बच्चे थे 7000 के लगभग स्ट्रेंथ बच्चे पढ़ रहे थे, और यहाँ से जब ये शिक्षा ओबरा इंटर कॉलेज था, जब यहाँ के टीचर थे जो पुराने टीचर, उनके माध्यम से कई बच्चे IAS PCS भी बने, वैज्ञानिक तक बने। और यहाँ तो जब से DAV हुआ है, यहाँ स्ट्रेंथ भी कम हो गई है। अब जाके देख लीजिए, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और फीस बढ़ने के कारण जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। DAV में पढ़ने मतलब कि अलग से स्कूल के टीचर लगाना, मतलब अलग से टीचर लगाना होता है, क्या इसको आप सही मानते हैं? जब स्कूल में पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो फिर शिक्षा को लेकर इतना फीस क्यों? सर देखिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन की प्रायोजक थी रोजगार डेवलपर्स।